All right. Hi, everyone. Good evening. Yeah, hi, Anjali. Good evening, Tanmay. Good evening, Kushal. Good evening, Rudra. Yeah, hi, Pratmesh. Evening, guys. All right. Great. So I think today will be our final lecture on chemical bonding. So जैसा मैंने आप लोगों को last class में बताया था, we are towards the end of the chapter and discussing this last bit, which honestly I don't like much because of certain reasons that you are going to now see. Coming back, आप लोगों का जस्ट अभी लेक्चर खत्म हुआ क्या मैथ्स का? बहुत खींच रहे हैं सर, एमटी के पहले सब टॉपिक्स खत्म करवाने हैं. ऐसा पोर्शन पीछे चल रहा है क्या उधर? किनका क्लास था? जीकेएम सर का, पीएम सर का? अच्छा, ठीक है ठीक है. गुड गुड, चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्डिंग का, राइट, उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग देख रहे थे. राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट लैटिस एनर्जी. लाइक एक बार मैं कोई रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को. So in the last class we had spoken about the concept of lattice energy, right, which is analogous to bond energy in covalent compounds. Right, in ionic compounds this lattice energy is used so as to describe the amount of energy that is released when 1 mole of ionic solid is formed. Right, and इसके बारे में मैंने आपको यही बताया था लास्ट क्लास में. I think that is also something which I mentioned, that it can't be experimentally determined, and उसके लिए we have this indirect thermodynamic method called as Born-Haber's cycle. Now, what is the underlying concept of Born-Haber's cycle? ये मैंने आपको बताया था that if we are going from A to B and the energy change is delta H1, then if you are going from A to B via C and that indirect path, like this was, you can say, going directly, this is, you can say, going indirectly, right? दोनों के केस में डेल्टा एच का सम सेम आ जाता है. This is, you can simply understand as, say, law of conservation of energy, as simple as that. It's an interpretation of that only. Now, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि to determine lattice energy, ठीक है, to determine lattice energy of a ionic solid, we create a cycle in which other delta H are known to us and the only missing part is the lattice energy, and then we relate all of them together to get the answer. Okay? So as I said in the last class also, right, don't try to predict by yourself, okay, that how I will create this cycle, like how will I think about it. Don't try to predict, okay? Just understand. Right, so what is it that we need to calculate was this part, okay, that Na plus ions in its gaseous state, Cl minus ions in its gaseous state, forming NaCl. Okay, this is something which we wanted to calculate, and this is what we have as delta H Le, lattice enthalpy of NaCl solid. However, यहाँ से यहाँ directly is not something which can be understood experimentally. So what we do have are certain indirect ways, right? So what we do is we create this kind of a cycle in which, यहाँ पर आप notice करना, we are observing this reaction. We are going from Na solid
plus half chlorine gas, giving NaCl solid. Like these are the naturally occurring forms of these constituent elements, sodium and chlorine, and we use them for this reaction, and we try to calculate the delta H, right? The energy exchange that is happening during this reaction. Now, going from here to here was this direct way, as well as there is this indirect way of thinking about it also, in which from Na solid, you go to first Na gas, which is called as delta H sublimation. This is also something which can be experimentally determined. It's no big deal. Then we get Na gas, say Na plus ions, which again, if you remember in periodic properties, we had studied this, we called this delta H IE, ionization enthalpy, right? This is also something which can be experimentally understood. Then breaking down chlorine molecules into chlorine atoms, that is again something which can be understood and determined experimentally quite easily. ठीक है, and यहाँ पर notice करना, because we have half a coefficient over here, right? Only half mole of Cl2 molecules का bond is going to be broken, so we multiply half over here as well, because this bond energy will be defined on a per mole basis. And then you remember again, Cl atom से Cl minus ion जाना, this is what we used to call as electron gain enthalpy, right? Delta H Eg. ये भी आपने periodic properties में देखा था. This is a bit tricky. This is not something which again gets determined experimentally. इसके लिए भी indirect methods use करने पड़ते हैं. ठीक है. But let's say we did get all these red ones, and the unknown is this blue one. Now, as you can notice, यहाँ पर, ठीक है, notice करना. Let me actually use a green color over here. This is the direct way, right? This green one is the direct way, and it will be sum of all the indirect steps going from again the same set of reactants to the same set of product, right? So you had these red ones. This was delta H sublimation, ionization energy, bond energy, electron gain enthalpy, and this lattice enthalpy, which is the unknown one. Now, let's say if you get all these others, the greens and the reds, you can determine the unknown, which is called as the lattice enthalpy. So this is an indirect way in which we estimate lattice enthalpy of different ionic solids. Now, as I said, आपको logical flow जरूर समझ में आया होगा कि this was a direct way of going from left to right, and this was an indirect way of going from left to right. बस उतना समझ लेना आपके लिए अभी काफी है. ठीक है. Don't try to, as I said, think ki, how will I come up with this kind of a cycle? It's absolutely okay, because in this chapter called thermochemistry में आपको 3-4 लेक्चर तक यही प्रैक्टिस कराया जाता है, like how to manipulate equations to get something unknown from known. तो अभी के लिए it will be a little bit of a challenge, but बाद में it will become quite comfortable. ठीक है. तो ये तो न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग था ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी. अब आना सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के ऊपर, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी फ्रॉम अ सिंपल सब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट. इट इज क्वाइट क्लियर दैट दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 if they are at a distance r from each other, right? So do you remember that electrostatic force is written as k q1 q2 by r square, right? या फिर electrostatic potential energy is written as k q1 q2 by r. ये याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा नहीं पहले. Have you guys come across this? एटॉमिक स्ट्रक्चर में. हाँ, ठीक है.
सो बेसिक है। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे तो ये जो लैटिस एनर्जी है, इट इज काइंड ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ओनली. However, a more complicated version because it's not just one ion. There are many ions around which there are like a cation will have many neighboring anions and anion will have many neighboring cations. तो वो सब complexities रहती हैं. However, यहाँ से एक subjective understanding हम लोग कैसे develop कर सकते हैं that अगर charge of ions like magnitude wise ज़्यादा है तो lattice energy ज़्यादा रहेगा. And अगर size of ions कम है, what will happen because of this? Distance between ions decreases, right? If the size of ions is lesser, then also lattice energy increases, like the magnitude of lattice energy. Okay, because lattice energy is something which is energy released, so we might put a negative sign along with it. So we are talking about the magnitude. Now based on that, you can do simple comparisons between lattice energy of ionic solids. So you have say NaCl, MgCl2, AlCl3. तो इनके बीच में कैसा रहेगा लैटिस एनर्जी का ट्रेंड? काफी सिंपल है. अनायन तो सब में सेम है, कटायन के हिसाब से सोचना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर रहेगा लेफ्ट टू राइट? हाँ करेक्ट साईराम, करेक्ट हर्ष. नहीं सार्थक आपने गलत दिया. ऋग्वेद आपका भी गलत है. श्रेया आपका भी गलत है. हाँ कुशल आपका सही है. यश आपका सही है. इंक्रीज करेगा ना, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख तो रहा है यहाँ पे. अनायन सेम है तीनों में. इट इज द कटायन विच इज मेकिंग द डिफरेंस. सो वी फोकस ऑन द कटायन. कटायन का चार्ज कैसा है इधर? +1, +2 एंड +3. सो द चार्ज इज इंक्रीजिंग. साइज भी नोटिस कर लेते हैं हम लोग. साइज कैसा है? Na+Mg2+Al3+ में साइज डिक्रीज हो रहा है. तो बोथ द फैक्टर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम ट्रेंड, दैट इज लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज. ठीक है, ऑलराइट. चलो इस केस में कंपेयर करके बताओ मुझे. LiF, NaF, KF, RBF and CSF. How will be the trend of lattice energy? Again, F ion is same, anion is same. cation के हिसाब से आपको कंपेयर करना है. cation का चार्ज सेम है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया? साइज. एंड साइज से हम लोगों ने क्या सीखा? साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी बड़ा है, साइज बड़ा हो रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो रहा है. करेक्ट. इस केस में बताओ चलो. LiF, LiCl, LiBr, Lii. हम करेंगे यश, थोड़ी देर में बात करेंगे उन सब में. करेक्ट. यहाँ पर कटायन सेम है, अनायन is what is different. Now charge of anion is same, size is increasing left to right, right? So the lattice energy will decrease. ठीक है, समझ में आया? All right.
चलो इस वाले में बताओ, कैसा रहेगा लैटिस एनर्जी का ट्रेंड? कैटायन सेम है, वापस से अनायन के हिसाब से ही देखना है आपको। चार्ज के हिसाब से भी देखा और साइज के हिसाब से भी देखा। राइट, चार्ज और साइज दोनों से कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, बट कैसा रहेगा? चार्ज विल डोमिनेट। कैसे? यहां पर आप नोटिस करो ना, चार्ज डबल ट्रिपल हो रहा है, राइट? And if you talk about the size, F minus, O2 minus, N3 minus, yes, size will increase going from left to right, but it will not be as bigger. Like it will not be double or triple. एक ही पीरियड के ना, तो इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर चार्ज के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। ऑल राइट, नाउ ये जो मैंने बात बताया आपको, चार्ज डोमिनेट्स, ये कब हो रहा है? व्हेन यू हैव सिमिलर साइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल LiCl कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें अभी आप नोटिस करोगे तो चार्ज के हिसाब से कैल्शियम, लाइक अनायन तो सेम है, कटायन के हिसाब से जाएंगे हम लोग, राइट? एंड कटायन के हिसाब से कैल्शियम 2+ का चार्ज बड़ा है, चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू Li+। हाउएवर साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूंगा तो Li+ एंड कैल्शियम 2+ will have a significant difference in terms of size also, right? Because ये एक सेकेंड पीरियड का है और एक फोर्थ पीरियड में है, तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा इनके साइज के बीच में। तो ऐसे एग्जांपल्स में कौन सा डोमिनेट करेगा इज नॉट समथिंग विच कैन बी प्रेडिक्टेड, ठीक है? इट इज नॉट समथिंग विच वी कैन आंसर as easily as we were able to answer the previous cases, ठीक है? तो आपसे इस तरीके से नहीं डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? समझ में आया आपको? हाँ, चार्ज यहाँ पे आप देखो ना निशांत, यहाँ पे चार्ज डबल और फिर ट्रिपल हो रहा है ना। अभी साइज थोड़े ना ये सेम पीरियड के हैं, तो साइज थोड़े ना डबल ट्रिपल हो रहा है इधर। समझ में आया? दैट इज व्हाई चार्ज वाज डोमिनेटिंग। Why we can't predict this example, LiCl and CaCl2? Right? Because of the fact that चार्ज डबल हो रहा है एंड साइज में भी यहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। So we really don't know which factor will play out, ठीक है? वो तो फिर हमें डेटा ही देख के कंपेयर करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। लाइक आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि लैटिस एनर्जी होता क्या है, देन उसका एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेशन नहीं होता है, थियोरेटिकली हम लोग कैसे बॉर्न हेवर साइकिल यूज करते हैं, एंड देन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए याद रखना दैट हाउ विल द फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी प्ले आउट अ रोल, ठीक है? तो आपके कॉमन कंपैरिजंस जहां पे होंगे चार्ज और साइज के हिसाब से आपको आंसर कर देना है। इसमें मोस्टली कोई ना कोई डोमिनेट करेगा, लाइक दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, बट अगर करता भी है तो टिपिकली यू विल हैव टू सी दैट सिमिलर अगर साइज है तो उसमें चार्ज को डोमिनेटिंग रख देना, ठीक है? बट अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है चार्ज और साइज के, लाइक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, तो वहां पर डोंट गो अबाउट इट,
Like it will not be asked as such. You will be not asked to compare such cases. ठीक है? हाँ, बोलो आयुष. सर एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्टेन किया गया फाइनल रिजल्ट? ढूंढना पड़ेगा वो तो, मतलब आई हैव टू गो थ्रू द डेटा. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखना, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स. सो ये रिमेंबर हम लोगों ने आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स देखा था. ठीक है, अगर H और Cl के बीच में बॉन्ड बनता है तो हमने नोटिस किया था यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना था, एंड हम लोगों ने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट करने की बात करी थी, राइट? हाउएवर व्हेन वी कम अक्रॉस आयोनिक कंपाउंड्स आल्सो, सो इसमें वी आल्सो फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, कैसे हम लोग इस कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक हाउ डिड वी लाइक found it in the first place, that ये covalent character आ कैसे रहा है. तो do you remember this mu experimental upon mu theoretical into 100%? क्या था ये? Does anyone remember this? हाँ, right यश, right हर्ष, right पूर्णा. This was percentage ionic character जो हम लोगों ने covalent compounds में डिस्कस किया था. Now let's say even if we like try to take a compound say like CSF, ठीक है, we might think this is the most ionic compound of sorts, right? Because cesium is most metallic, fluorine is most non-metallic. When we analyze CSF as a compound and इस CSF का हम लोग theoretical dipole moment निकालेंगे, right? कैसे? We will multiply the charge into the distance between CS and fluorine. Like हम लोग कैसा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीजियम और फ्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, एंड उसको यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो डू अनदर एक्सपेरिमेंट इन विच वी विल लाइक टेक अ कैपेसिटर एंड उसमें CSF को डालेंगे. Like this is the way in which we measure experimental dipole moments. ठीक है, तो करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट भी निकालेंगे. एंड व्हाट वी फाउंड आउट was that this was not coming equal to 100%. In fact, this was coming less than 100%. ठीक है, नहीं यश, मैंने इसे कब करेंगे मतलब हम नहीं करेंगे, जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करना आता है उन्होंने करा हुआ है. Like हम नहीं करेंगे ये एक्सपेरिमेंट. Like I appreciate the fact that you are so curious into doing this practically. मिलेगा आपको मौका, आपका जब कॉलेज शुरू होने का कुछ डेट वगैरह पता पड़ा क्या आप लोगों को? Like is there something finalized? आप लोगों के तो खैर स्कूल्स चल ही रहे होंगे, बट लाइक ऑफलाइन मोड में. ठीक है, तो एनीवेज हाँ सो एनीवेज यहाँ पर ठीक है अभी फोकस करो. जैसा मैं कह रहा था दैट फॉर आयनिक कंपाउंड्स आल्सो व्हेन वी डू दिस कैलकुलेशन वी डोंट फाइंड देम टू बी शोइंग 100% आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, देयर एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट डज नॉट मैच अप विद द theoretical dipole moment. Now उसके पीछे का रीजन समझा गया, that why is it the case, why is it that we are getting covalent character in ionic compounds, or why we aren't getting 100% ionic character. तो उसके पीछे का thought process कुछ इस तरीके से समझ में आया that in case of ionic compounds what we found out was that जो smaller size ion रहता है, usually it is the cation,
ठीक है, that the smaller size ion, ठीक है, it distorts the electron cloud of the larger size ion, usually the anion. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, we are talking about percentage covalent character in ionic compounds. So in ionic compounds where there is a significant difference between the size of cation and anion, usually cations are smaller than anions, it is observed that the valence shell electrons of the larger size ion, the anion, are attracted by the smaller size ion, that is the cation, which results in the distortion of the electron cloud. And this phenomena is called as polarization of the ion. Now, because of this polarization, right, what we see is that there is a opposite dipole moment created. ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का डाइपोल मोमेंट है जो कटायन अनायन का था, राइट, जो ओरिजिनल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. एंड इस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि अनायन की सिमेट्रिकल होनी चाहिए थी, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज स्क्यूड अ बिट टुवर्ड्स वन ऑफ द साइड्स. ठीक है, एंड इसको नेगेट करता हुआ, लाइक क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसको अपोज करता हुआ देयर इज दिस dipole moment that has been created because of this polarization. ठीक है, so this results in a reduction of the dipole moment, and as a result what we say is the covalent character is introduced. ठीक है, now definitely आपके दिमाग में doubts आ रहे होंगे that what if it is a case of larger cation, smaller anion, right? हाँ, जैसे श्री राम का ही रहा था. बोलो साई राम. सर वही मेरा डाउट था कि लाइक अगर थोड़े केसेस होते हैं जहाँ पे कटायन अनायन से बड़े होते हैं ना, उधर क्या होता है? हाँ, बट स्टिल यहाँ पे नोटिस करना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा वो किसका होगा? लार्जर साइज है अनायन. हाँ, मतलब सो व्हाट वी इंटेंड टू से, देखो एक एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है. यस सर. अब इस न्यूक्लियस का पुल है आउटसाइड द एटम ऑल्सो, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. यस सर. ठीक है, जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा दूंगा तो क्या हो जाता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. यस सर. ठीक है, यानी कि इसका पुल और बढ़ जाता है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. एंड वैसे ही जब मैं अनायन के बारे में बात करता हूं तो एक अनायन पे भी कैसा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिससे स्क्रीनिंग बढ़ रही है. तो उससे क्या होता है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है. कम होता है. ठीक है, तो इवन इफ इट इज अ केस ऑफ से लार्जर कटायन एंड स्मॉलर अनायन, ठीक है, पोलराइज क्या होगा? अनायन. अनायन. ठीक है, पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन इज गोइंग टू हैपन. अब जहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर वी विल से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फजान्स रूल. ग्रेटर द पोलराइजेशन, greater is the covalent character in ionic compound. ठीक है, now what are the factors that are going to play a role in polarization? तो वो एक एक करके समझना. सबसे पहला नोटिस करना, चार्ज ऑफ आयंस. ठीक है, बीट कटायन और बीट अनायन. ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा.
ठीक है, like you can understand this in a bit more detail. If charge of cation increases, right, magnitude wise, charge of cation increase करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? What does this mean? उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा गया है ना, यानी कि उसका Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा किसका? कटायन का। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर, क्योंकि कटायन पोलराइज करेगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि कटायन का चार्ज बढ़ रहा है, उसका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, राइट, सो इट विल बी एबल टू do more distortion and increase the polarization। ठीक है, वहीं पर अब अनायन के बारे में सोचना। ठीक है, if charge of anion increases, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, what will happen to the anion? उसका Z इफेक्टिव तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके ऊपर। अनायन का चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लूजली बाउंड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे ध्यान से नोटिस करना द चॉइस ऑफ वर्ड्स। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजिंग पावर नहीं बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस। मतलब अब जो अनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो चार्ज ऑफ आयंस इंक्रीजेस, द पोलराइजेशन increases. So let's say if I ask you to compare these examples, NaCl, MgCl2, AlCl3, पोलराइजेबिलिटी मतलब अनायन जो है वो खुद पोलराइज हो रहा है ना, अनायन जो है वो खुद पोलराइज हो रहा है, तो उसकी खुद की पोलराइज होने की टेंडेंसी को हम पोलराइजेबिलिटी कह रहे हैं। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी जो है, लाइक कटायन जो है वो तो क्या करेगा? वो डिस्टॉर्ट करेगा, अनायन डिस्टॉर्ट करवाएगा। तो अनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी हाईलाइट देम। अनायन के लिए हम लोग पोलराइजेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे, कटायन के लिए पोलराइजिंग पावर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों एग्जांपल्स में यू हैव टू आंसर किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा या किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर? सोचो और आंसर करो। करेक्ट, सो मेनी ऑफ यू हैव बीन एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। यहां पर देखो कटायन, सॉरी अनायन सब में सेम है, कटायन है जो कि डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कटायन का चार्ज। तो कटायन का चार्ज यहाँ पे +1 +2 +3 बढ़ रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, and as a result we say percentage covalent character would increase. So AlCl3 will have a greater covalent character. In fact, if you remember, we had talked about
Al2Cl6, ये हम लोग कैसे बोलते हैं हम AlCl3, like AlCl3 में what we are talking about, AlCl3 exists as a dimer, Al2Cl6, right, has like covalent coordinate या dative bonds, right, याद है अपन लोगों ने डिस्कस किया था, right, and that point in time some of you had asked this question कि sir AlCl3 तो ionic होगा, but AlCl3 में what we understand is that there is a high covalent character. ठीक है, all right, next example देखते हैं. हाँ हाँ यश, आप बोल सकते हो, you can. एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इनमें बताओ मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा रहेगा? हाउ वुड द कोवेलेंट कैरेक्टर बी? इनमें कटायन सेम हो गया, अनायन का डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट, एंड अनायन का चार्ज कैसा है यहाँ पर? -3, -2, -1, राइट. तो क्या हमने पढ़ा था ऊपर? ग्रेटर द चार्ज ऑफ अनायन, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी. ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी क्यों? बिकॉज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. तो यहाँ पर नाइट्राइड आयन ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा एज कंपेयर टू ऑक्साइड आयन, एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन. तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. समझ में आया ये? ऑलराइट, तो ये तो चार्ज का फैक्टर था. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे जाते हैं हम लोग. विल टॉक अबाउट द फैक्टर ऑफ साइज. तो साइज में सबसे पहले कटायन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो साइज ऑफ कटायन ऑब्जर्व करना. सबसे पहले कटायन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. साइज ऑफ कटायन अगर कम होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. अगर कटायन का साइज कम होगा, ठीक है, अज्यूमिंग चार्ज सेम है, ठीक है, अज्यूमिंग Li प्लस आयन, Na प्लस आयन, K प्लस आयन, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूं. ठीक है, इनमें चार्ज तो सेम है सब में, राइट. अब जो छोटी साइज का होगा, राइट, इट विल हैव अ, यू कैन से, ग्रेटर टेंडेंसी टू और ग्रेटर एबिलिटी टू पोलराइज एन अनायन. इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि सेम चार्ज है, राइट. बट डिस्टेंस कैसा रहेगा विद द अनायन? Li प्लस का और छोटा रहेगा, लाइक इट विल बी एबल टू क्रिएट मोर डिस्टॉर्शन on the electron cloud of the iodide ions. So you can understand that covalent character in Li would be greater than CSI. Right? ये भी समझ में आ रहा है, fairly intuitive है. It isn't something which is very difficult. Okay. Then you have a factor of size of anion. ठीक है, यहां पर नोटिस करना, अगर अनायन का साइज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट. बिकॉज अगर अनायन का साइज बढ़ गया तो क्या हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स उससे और नहीं संभलेंगे, लाइक दे विल बी इवन फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन एटम और इट्स ओन आयन. तो उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो इफ यू हैव से LiF, LiCl, LiBr एंड Lii, राइट, कटायन सब में सेम है,
ठीक है, अनायन इज व्हाट इज डिफरेंट, एंड अनायन का चार्ज सेम है, राइट? तो क्या मैटर कर रहा है यहाँ पर? अनायन का साइज. द बिगर द साइज, द मोर पोलराइजेबिलिटी it will have, the easier उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी टू डिस्टॉर्ट. तो I माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट कर देगा Li प्लस आयन एज कंपेयर टू F माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? सो यहाँ पर चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है. ये समझ में आया? आर दीज फैक्टर्स क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब नोटिस करना इन केस ठीक है, अगर दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, देन अगर लाइक सिमिलर जैसे यहां पर इनफैक्ट इसकी ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें देखा जाए तो एक तरीके से दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि N3 माइनस आयन जो है उसका चार्ज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्साइड आयन, एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, एंड साइज भी ज्यादा है. नहीं, इसमें दोनों फैक्टर्स ही सेम पॉइंट कर रहे थे. कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है. नहीं, इसमें भी दोनों फैक्टर सेम ही चीजें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है. सो इन केस I would say that you have say similar size, ठीक है, फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट अगर कर रहे हैं और सिमिलर साइज है तो फिर चार्ज के हिसाब से आप लोग आंसर कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, गिव मी जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट दो मुझे. इसमें एक फैक्टर मिसिंग है. ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर फैक्टर व्हिच इज देयर. लेट मी हेल्प इंट्रोड्यूस दैट फैक्टर आल्सो. सो वो थोड़ा अलग सा ही फैक्टर है, उसको अलग से ध्यान रखना. दिस इज कॉल्ड एज सूडो inert gas configuration. So इसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है. It's observed that salts of D block metals have greater covalent character than those of alkali or alkaline earth metals. Now the reason why it is attributed in this way, यहाँ पर notice करना, it is due to poor shielding of the d electrons क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा.
Z effective increases, that is polarizing power of cations increase. ठीक है, तो इसमें सूडो इनर्ट क्या चीज है? बेसिकली सूडो इनर्ट इज सेइंग दैट यहां पर द fully filled, or I would not even say fully filled, the specific examples that are cited are of fully filled. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल NaCl और CuCl, ठीक है, इनके बीच में अगर लाइक कंपेयर करना है, ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पर आप नोटिस करना, इफ यू रिमेम्बर इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एज इन पीरियोडिक टेबल में, लाइक ये Na प्लस होता था, ठीक है, उसके नीचे K प्लस आता था, राइट, एंड उसके आगे कहीं आगे जाके Cu प्लस आयन आता था. ठीक है, तो अब आप नोटिस करना इन दोनों केस में अनायन तो सेम है, Cl माइनस आयन. कटायन इज व्हाट इज डिफरेंट. अच्छा, कटायन का चार्ज भी सेम है, दोनों में +1 है, बट यहां पर आप नोटिस करना, ठीक है, यहां से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? Na प्लस से K प्लस जाएंगे तो क्या होता है? साइज बढ़ता है, ठीक है, एंड K प्लस से आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? साइज घटता है, राइट. तो यू माइट से कि चलो ठीक है, मतलब Na प्लस से K प्लस साइज बड़ा है, बट K प्लस से Cu प्लस साइज घटा होगा, तो सिमिलर साइज के होंगे, बट इनके साइज के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है. ठीक है, साइज ऑफ Na प्लस याद नहीं रखना है, मैं जस्ट ऐसे ही आपको एक आइडिया दे रहा हूँ. दिस इज अराउंड 116 पिकोमीटर, whereas size of Cu plus, right, this is somewhere around 91 picometer. So there's a huge, this is relatively speaking huge gap, and this is why we say that यहाँ पर, ठीक है, आप नोटिस करोगे 1s2 2s2 2p6, like this is the inert gas configuration. ठीक है, नाम कहाँ से आ रहा है बता रहा हूँ आपको. This is like the inert gas configuration, and if you talk about Cu plus ion, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d10. ठीक है, तो दिस इज नॉट एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट दिस इज ऑल सबशेल्स फुल्ली फिल्ड, so this is called as pseudo inert gas configuration. बट यहां पर हो क्या रहा है? that these are the poor shielders. ठीक है, because of this poor shielders, the Z effective of Cu plus ion is more, and we find that these ions, they tend to show greater covalent character. ठीक है, so this was a special example of Cu that I had showed you, but in general D block में, ठीक है, even if they don't have the pseudo inert gas configuration, D block में कैसा रहेगा? ये जो poor shielding D electrons है, इनकी वजह से Z effective बढ़ जाता है, जिसकी वजह से these D block के salts, they have a greater covalent character. ठीक है, even let's say if I was to say compare KCl with AgCl, ठीक है, तो इसमें भी if I talk about percentage covalent character, AgCl का ज्यादा रहेगा. like AgCl में इतना ज्यादा रहता है कि it is kind of an insoluble salt. KCl is highly soluble, like AgCl is insoluble because of its high covalent character. Insoluble in water due to high
हाँ, ये जो मैं सिलेक्ट एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, CuCl2 मैंने इसलिए कंपेयर नहीं करा बिकॉज CuCl2 में मतलब लाइक NaCl wouldn't be the right comparison. I would then rather do MgCl2 and CuCl2. Like कुछ तो सिमिलैरिटी हो ना। ठीक है, ऑलराइट। नहीं, एटॉमिसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। Rather, when we talk about ionic compounds, we don't use the word atomicity. There is another word called coordination number or the nearest neighbors. That is what is used. Atomicity is a word used for molecules. Anyways, coming back. So now, after understanding this, we would be discussing certain properties of ionic compounds. ठीक है, so एक एक करके समझना। सबसे पहले we'll be talking about melting point as a property. Now, melting point जो है, इसके दो फैक्टर्स रहेंगे। एक तो रहेगा लैटिस एनर्जी, अगर ज्यादा लैटिस एनर्जी है मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के ज्यादा रहेंगे। एंड दूसरा फैक्टर रहेगा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, राइट, तो इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, करेक्ट। सो नाउ इन केसेस जहां पर ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, बोथ फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी सी वेरी स्मूथ ट्रेंड्स। लाइक जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा MF, MCl, MBr, Mi, where M being these cations, right? यहाँ पर कैसा हो रहा है, if you will ask me, मेटल यानी कि आयन तो सेम है, कटायन तो सेम है, राइट, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, अनायन से। अनायन का चार्ज भी सेम है, अनायन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अनायन का साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो both the factors are pointing out towards the same trend of melting point, as you can see over here. And what we find is that yes, the trends do come out to be pretty smooth. However, when these factors tend to contradict, that is where sometimes we see anomaly in the trends. Now, what do we do with anomaly? छोड़ेंगे तो नहीं। तो कुछ सिलेक्ट एग्जाम्पल्स हैं जो अगेन मैं आपसे बोलूंगा, याद रखना है, ठीक है। दीज आर अगेन क्लासिक एग्जाम्पल्स, सो नोटिस करना। सबसे पहला रहेगा LiCl, एज इन ये अल्कली क्लोराइड्स का, ठीक है। किस तरीके से है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, राइट। इनमें most of the trend is as per lattice energy only. Like NaCl से KCl जो हम बात कर रहे हैं, NaCl से KCl से RbCl से CSCl, ठीक है। This is a regular trend because of lattice energy, right? NaCl का lattice energy ज्यादा है, NaCl का melting point भी ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व भी होता है। KCl, RbCl, CSCl का मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होता जाता है। नाउ एज पर लैटिस एनर्जी, LiCl का लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, एज मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, बट व्हाट वी फाइंड इज दैट लैटिस मेल्टिंग पॉइंट
of LiCl is all the way lower than that of CSCl. It is even lesser than CSCl. Why? Because of greater percentage covalent character. Because of this greater percentage covalent character, LiCl has the least melting point. So it is because of this contradiction, this irregularity was observed. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, this example in particular. अच्छा, यहां पर नोटिस करना NaCl, MgCl2, AlCl3, इनमें कैसा ट्रेंड रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का? जो गाइस एक बार ट्राई करो, लैटिस एनर्जी से कैसा रहेगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर से कैसा रहेगा? नहीं, इसमें आप कहां पर किसको प्रायोरिटी दोगे भाई? यू कांट गेस. ये थोड़ी ना पता था आपको कि यहाँ पर मुझे लैटिस एनर्जी को प्रायोरिटी देनी है और वहां पर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रायोरिटी देनी है. ये आपको पता थोड़ा ना था, ये तो मैंने बताया है. करेक्ट. तो इसमें अब आप नोटिस करना, एंड दिस इज नॉट समथिंग टू एक्स्ट्रापोलेट. यहां पर लैटिस एनर्जी से ऑपोजिट ट्रेंड दिखता है कोवेलेंट कैरेक्टर से कंपेयर करने पर. बट यहाँ पर what we find is that the covalent character के हिसाब से the trend is coming that melting point of NaCl is greater than MgCl2 is greater than AlCl3. So Cl3 has the least melting point because of high covalent character and not because of lattice energy. Right? तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है? Because जहाँ पे contradictions हो रहे हैं वहाँ पे आप, मैंने वही बोला कि you can't प्रेडिक्ट. ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आप, ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे ये क्लोराइड्स के एग्जांपल्स आप ध्यान में रखो. सो वैसे BCl2, MgCl2, इनमें आप मुझे बताओ लैटिस एनर्जी का और कोवेलेंट कैरेक्टर का दोनों का ट्रेंड बताओ कैसा रहेगा? लैटिस एनर्जी वुड बी डिक्रीजिंग. करेक्ट. और कोवेलेंट कैरेक्टर का? करेक्ट. तो यहाँ पर अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से ट्रेंड देखने को मिल रहा है. What we find in this case is that the melting point, ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि हर केस में कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है. ये दो एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना बस, that what we are observing is the trend due to
कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट इज स्टिल something which is okay as a property of ionic compounds. It is still something that in many cases मेल्टिंग पॉइंट का आंसर लैटिस एनर्जी के हिसाब से बता दोगे चल जाएगा काम, स्पेशली जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इन मेनी केसेस जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता भी है तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स आप बता दोगे, एज इन लैटिस एनर्जी से बता दोगे। ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि इनका प्लीज आप ध्यान में रखो। ठीक है, दैट इनमें लाइक हाउ द ट्रेंड इज। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड कैसे डिटरमाइन करते हैं हमें यही तो सिखाया था थोड़ी देर पहले। अभी यहाँ पर लेट्स से इस सिनेरियो में अपन बात करें, राइट, इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पर अनायन सेम है, राइट, कटायन डिफरेंट है, कटायन का चार्ज सेम है, राइट, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, पोलराइजिंग पावर कम हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, all right, so this was one property. Now next is the property which is even much more weird. Okay, this is why I keep this as the last topic in chemical bonding, because this is even worst. तो यहाँ पर आप notice करना, when we talk about solubility of ionic compounds in water, so in general ionic compounds they dissolve in water, and during that process of dissolution, राइट, क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो लैटिस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जिसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, एंड एक होता है आयंस का हाइड्रेशन, राइट। तो जैसे जब आपने NaCl को पानी में डाला तो एक तो NaCl का लैटिस ब्रेक होगा एंड दूसरा उसके आयंस हाइड्रेट होंगे। आयंस के हाइड्रेशन पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन पे क्यों एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी। ठीक है, सो इफ आई वाज टू थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स, ठीक है, लाइक दिस इज ब्रेकिंग ऑफ लैटिस एंड दिस इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस, राइट, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा ये सॉल्वेशन का प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, सो इफ आई वाज टू अंडरस्टैंड दीज 2 फैक्टर्स, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इनका इम्पैक्ट कैसा रहेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, है कि नहीं। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, विच इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर ये ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि लैटिस को लैटिस के फॉर्म में रहना पसंद रहेगा, बोले मतलब मेरे को तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। एंड वहीं पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस ज्यादा है, राइट, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज मोर एनर्जी रिलीज्ड कैन बी यूज्ड टू ब्रेक द लैटिस, लाइक मोर ये एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस कैन बी यूज्ड टू ब्रेक द लैटिस। तो अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी अच्छी है, ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, राइट। डू यू अग्री विद दीज 2 फैक्टर्स? ये समझ में आए दोनों फैक्टर्स आपको? हाँ, तो पहले आप ये चीज समझो ना, इतना लंबा मैसेज टाइप करने के पहले अगर ध्यान यहाँ लगाते हर्ष तो समझ में आता ना। जब मैं समझा रहा था तब तुमने अपना आधा टाइम तो मैसेज टाइप करने में लिख दिया, सर आज 8:30 छोड़ देंगे क्या क्लास प्लीज सर, बिकॉज दिस इज द लास्ट टॉपिक। और अब बोल रहे हो समझ नहीं आया, कैसे समझ में आएगा, जब मैं समझा रहा हूँ तब तो तुम तुम्हारी प्रेयर लिख रहे हो।
वापस से ध्यान से सुनना है यहाँ पर. डू यू अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी? मतलब सॉल्ट इज गेटिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो सॉल्ट जब डिजॉल्व होगा वाटर में तब दो चीजें होंगी साइमल्टेनियसली. आयंस जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स से इंटरेक्ट करेंगे, उनका हाइड्रेशन होगा जिससे एनर्जी रिलीज होती है. एंड जो आयंस के बीच के इंटरेक्शंस थे, जो उनके बीच का लैटिस था, वो ब्रेक होता जाएगा. तो इस केस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. ठीक है. नाउ अब अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो मतलब आयन साथ में रहना पसंद करेंगे. दे विल हैव अ लेसर सॉल्युबिलिटी. The salt will have the ionic solid will have a lesser solubility. और वहीं पर अगर आयंस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लाइक एनर्जी रिलीज ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. नाउ डू यू रिमेंबर द फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी? व्हाट वर द अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी? Size and charge, correct. What were the underlying factors of hydration energy? Do you remember this? Periodic properties में पढ़ा था. The same, size and charge, correct. तो अब यहां पर नोटिस करना, these two factors end up contradicting always. ये दोनों फैक्टर्स हमेशा ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे. अगर मेरे आयंस का चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी एंड हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी. अब लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, बट हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. तो these two factors always contradict each other, and that is why the solubility and उसके trends are really screwed up. ठीक है. बट हमें तो पढ़ना है. ठीक है. मैं मतलब आइडियली स्पीकिंग जब कॉन्ट्रडिक्शन है तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए. है तो है, क्यों मतलब इन दोनों के आपस के बीच के लफड़े में पड़े? हु आर वी टू डिसाइड? बट हम लोग शांत तो बैठते नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ तो यहां से सीख के जाना ही पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर एक चेरी ऑन टॉप भी रहता है. In some examples, percentage covalent character also plays an important role. तो हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ के जाएंगे. सो यहां पर नोटिस करना. ठीक है. कॉन्ट्रडिक्शन तो आई होप आपको समझ में आया. ठीक है. अब क्या करना है हमको? की ऑब्जर्वेशंस को कुछ को ध्यान में रखना है. व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशंस? मतलब इस पूरे मेस में भी देयर आर सम ट्रेंड्स और सम पैटर्न्स दैट वी आर कमिंग अक्रॉस. तो उसमें आप नोटिस करना, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर इज फर्स्ट दिस वन. जहां पर कंपाउंड्स सेम चार्ज के आयंस से
फॉर्म हो रहे हैं, राइट, कटायन का और अनायन का चार्ज सेम है, तो उसमें हमें क्या समझ में आता है कि अगर दोनों ही आयन बड़े हैं या दोनों ही आयन छोटे हैं, अगर दोनों ही कटायन आनायन बड़े हैं या फिर दोनों ही कटायन आनायन छोटे हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू द केसेस जहां पे वी हैव वन बड़ा आयन एंड वन छोटा आयन. So let's say if I create this kind of a matrix, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, right, ये मेरे +1 आयन्स हैं और ये मेरे -1 अनायन्स हैं. तो इनमें नोटिस करना जो सिमिलर साइज के आयन्स हैं, लेट्स से लिथियम एंड फ्लोरीन के, राइट, तो LiF is found to be least soluble amongst lithium halides, and similarly CSI, like both ions are बड़े, cesium and iodine both ions बड़े हैं, तो cesium iodide is found to be least soluble amongst cesium halides. and वहीं पर अगर significant difference है between the size of ions, let's say lithium और iodine का अगर मैं देख रहा हूँ कंपाउंड lithium iodide, this is highly soluble, whereas मैं cesium fluoride की बात कर रहा हूँ तो it is also found to be highly soluble. तो एक तो ये पैटर्न, एक ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. दूसरा ऑब्जर्वेशन which you will have to remember is this one. In case of small ions, ठीक है, स्पेशली क्या है, स्मॉल अनायंस, ठीक है, कौन से, सच एज F-, OH-, these are like small anions, ठीक है. इनमें कैसा हो रहा है, इनमें what we understand is that lattice energy dominates the trend. So let's say LiF, NaF, KF, RBF, CSF, right, इनमें we have the small size ion F-, तो इसमें अब मैं लैटिस एनर्जी से ऑब्जर्व करूंगा तो आपको कैसा दिखेगा, LiF का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द लिथियम प्लस आयन, एंड CSF का साइज बड़ा होगा, लाइक उसमें लैटिस एनर्जी कम होगी, तो लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से लाइक यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है. Similar trend is observed in lithium hydroxide, sodium hydroxide, and these beryllium as well as hydroxides and fluorides में, जहाँ पे smaller ion का केस आ रहा है, ठीक है. तो ये पार्ट ध्यान रखेंगे in case of these smaller ions, and ये examples ध्यान में रखेंगे. F- and OH- में it is this lattice energy trend which is found to be dominating, ठीक है. अच्छा, इसमें एक ये BF2 kind of comes out as an exception, ठीक है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ट्रेंड is as per the lattice energy only. ये BF2 एक यहाँ पर
स्पॉइल स्पोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। हाँ हाँ, मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। So this is not an exception, like this is we are trying to determine certain trends and उसमें यहाँ पर ही abrupt आ गया है। ठीक है, now अब नोटिस करना, in case of larger size ions, ठीक है, अरे यहाँ पे है ही नहीं वो, क्या इसने नोट्स आखिरी में स्किप कर दिए क्या? नहीं, अच्छा वो मैंने पेज इंसर्ट नहीं करा, माय बैड गाइस, एक मिनट। बस ये लास्ट ही है। For salts with larger ions, ठीक है, यहाँ पे लार्जर आयंस के लिए नोटिस करना, यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट्स। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड। व्हाट विल बी दीज लार्जर साइज आयंस? ठीक है, लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, आयोडाइड। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल्स, ठीक है, रिमेंबर these select examples। ठीक है, इसमें why I'm asking you to remember these select examples is because ऐसा नहीं है कि बहुत ही रोबस्ट फैक्टर है ये, लाइक इन केसेस में व्हाट वी आर कमिंग अक्रॉस इज कि कार्बोनेट, सल्फेट, आयोडाइड, दीज आर बिगर साइज आयंस, तो इनके केस में हाइड्रेशन एनर्जी is kind of playing a dominant role, but ऐसा नहीं है that this is always the case। मतलब if you actually ask me कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इसमें भी क्या ऐसा ही ट्रेंड है? द आंसर इज नो। ठीक है, सो थोड़ा तो पसंद नहीं है मुझे टॉपिक इसी वजह से, इसलिए मैं सबसे एंड में लेता हूँ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज द वर्स्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रेंड्स। ठीक है, बट समहाउ स्टिल देयर आर क्वेश्चंस दैट कम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉल्युबिलिटी, आप इनफैक्ट इसको ज्यादा वेटेज देना। ठीक है, जितना बुरा है और फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, स्पेशली दीज वंस, ये जो मैं यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फेट और आयोडाइड की बताया आपको। इन केस में हाइड्रेशन एनर्जी कैसा रहेगा? यहाँ पर अनायन तो सेम है, कटायन चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है, एंड लास्टली couple of examples where percentage covalent character plays a dominating role. In case of AgF, AgCl, AgBr, AgI, we find that AgCl, AgBr, AgI are kind of insoluble, right? And their solubility is also decreasing because of the greater covalent character. Similarly, ये copper का chloride, bromide, iodide, CuF मिलता ही नहीं है, एक्चुअली CuF2 एग्जिस्ट करता है, बट इनमें भी लाइक कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये
कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स रहेंगे ऑफ ट्रेंड्स which I would request you to remember in solubility. Otherwise, it is like very weird. मतलब, if you try to like even go through the database, मतलब in fact ऐसा भी है, मतलब आपको wiki पे data भी मिलेगा इसका, if you would want to waste your time, like I have done many times. Solubility of salts. ठीक है, तो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि चाहिए तो जाओ, इस लिंक पर आपको मिलेंगे सॉल्युबिलिटीज, और फिर कोई ट्रेंड समझ में आता है तो मुझे बताना जरूर, बट नहीं आएगा ठीक है। तो इसमें ये जो सिलेक्ट एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, प्लीज इनका आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। Alright, so this was the last topic. We are done with bonding as a chapter now. So you guys can go ahead and start finishing off the remaining part of the booklet as well. And next class onwards, पहले तो मैं थोड़ा bonding के booklet को डिस्कस करूंगा, and then we will start with the next chapter, that is thermodynamics. ठीक है। हाँ, NO माइनस का मैंने देखा वो पैरामैग्नेटिक ही है। हाँ ठीक है। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाउट्स डिस्कस करेंगे पहले बुकलेट के। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द होमवर्क दैट आई हैड आस्क्ड यू, ठीक है, स्पेशली जो पहले मैंने भेजा था। बाकी अब इसके आगे तो आप पूरी बुकलेट भी कर सकते हो। हाँ बोलो साहिब। सर मुझे लास्ट लेक्चर से डाउट था एक। हाँ हाँ बोलो। सर वो बॉन्ड ऑर्डर आपने सीखा था, उसमें सीएन का बॉन्ड ऑर्डर आपने कैसे कैलकुलेट किया वो बता दो एक बार। CN की CN माइनस का सीएन माइनस सर। हाँ, तो इसमें आप काउंट करो ना, 14 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 7 + 1। हाँ सर 14। राइट, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दो, तो उसमें यू विल गेट 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिवाइड दैट बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा ना। ठीक है, सर नहीं समझा सर। अभी तक 14 इलेक्ट्रॉन समझा था कि नहीं समझा था? 14 इलेक्ट्रॉन सर वो फिल किया मैंने, फिर आपने आगे कैलकुलेट कैसे किया? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो कितने यहाँ पे, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गया, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गया, बट ये बॉन्डिंग कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना किससे भी। अच्छा सर, आपने वैसे मतलब कैंसिल करके किया, टोटल नहीं किया? मतलब वो भी कर सकते हो, मतलब एक ही चीज है। ओके सर। ये नहीं है यहाँ पर, ये 15th इलेक्ट्रॉन है। ओके सर ओके। ठीक है, हाँ देन क्या कह रहे हो रुद्र? एग्जाम्पल वेयर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स, वो बस मैंने इतना बताया यहाँ पर, that these are some examples where the size of anion is larger. So I took some examples of carbonate, sulfate and iodide ions. These are larger size ions. So इनमें it is the hydration energy. ऐसा यहाँ पर आप देखोगे ना, let's say ये कार्बोनेट्स कंपेयर करने हैं,
तो इनमें कैसा है, अनायन तो सेम है, कटायन डिफरेंट है, कटायन का चार्ज सेम है, कटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, डिस्टॉर्शन के बारे में क्या समझना है तन्मय? हाँ नहीं नहीं, लेक्चर इज ओवर। नहीं नहीं, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने का कोई पॉइंट नहीं है यश इसमें, लाइक द नोट्स आर योर शॉर्ट नोट्स। हाँ हाँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इक्के दुक्के जो डाउट्स हैं आप लोगों के वही सब डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी क्रिसमस आयुष। यप। बताओ भाई तन्मय, कहाँ गए तुम, गायब तो नहीं हो गए? सब नोट्स लिखने हैं भाई, तुम लोग नोट्स नहीं लिख रहे क्या अभी तक? करो करो, नोट्स कंप्लीट करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। हिंडर्ड वाला पार्ट मतलब? हिंडर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे, कौन सा हिंडर्ड वाला पार्ट? अरे तुम या तो अनम्यूट हो जाओ दिन में और तब समझा दो मुझे, तुम बहुत टाइप करने में टाइम लगा रहे हो। बाकी किसी को कोई और डाउट पूछना है? एनीथिंग एल्स यू गाइस वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? ऑलराइट, ठीक है, देन लेट्स close the session. Thank you guys, take care.